Thank हाय you. हेलो नमस्ते केम छो। Thank you so much for everything. योर वेलकम योर वेलकम। बच्चे का सेंट जेवियर में सिलेक्शन हो गया। आई एम हैप्पी। Yes, sir. Me too. Thank you. ओके आई वांट पॉडकास्ट आप दोनों लोग दो। संबित कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अपना 100% दिया था एग्जाम के लिए। Hi guys, welcome to Saint Xavier podcast. So today we have a Sambit who have cracked Saint Xavier and got into the Saint Xavier Mumbai admission for BMS program. Sambit, welcome on board. कैसा लग रहा है? फिर से ऑडियंस को बता दो क्या फीलिंग लग रही है, कैसा एक्सपीरियंस, हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड इन सेंट जेवियर। It's a really nice experience as I've achieved a very big thing in getting admissions in Xavier. I put my 100% in this exam and finally I've got the opportunity to join the one of the best colleges of St. Xavier. And ओके। it comes to the manual education. हम्म। And due to the online lectures and due to the mock test, which was very efficient for the time management. And also the questions was also very good, which helped me a lot in cracking the exam. ओके ओके। सो संबित, टेंथ ट्वेल्थ थोड़ा अपने बारे में बताओ, बेसिक इन्फॉर्मेशन। टेंथ ट्वेल्थ क्या परसेंटेज रहे? और In 10th, I have got 87%. Then I have chosen commerce as my stream. And in 12, I got 90%. विच कॉलेज? New Horizons Scholar School. ओके ओके CBSE. ओके। एंड आफ्टर देन यू आई मीन बीएमएस करना है, हाउ दिस आइडिया केम इनटू द पिक्चर? I thought management will be a very nice subject for me, so that's why I've chosen BMS. हम्म। एंड हाउ यू गॉट टू नो अबाउट द मेन्यूअर? I have searched the online institute which would be good for the entrance exam, and then I saw manual education. ओके ओके। So, tell me your preparation journey. How was your preparation journey? Like, you have to prepare for the English, maths, logic. So, entire syllabus जो preparation करना था. So, was there any schedule you had made? Morning, afternoon, evening में ये topic पढ़ूंगा, ये topic practice करूंगा. Uh, when I joined the manual, I was in my 12, so I gave most my focus in the 12th exam. And Okay, after that, I have saw only the online lectures. okay, And all, I've also secured this as my maths is little weak, so I've focused mainly on my other subject like English and logical reasoning. okay, okay. So, how many hours you were studying? Like 6 hour, 8 hour, 10 ऐसा कुछ timeline था? More than 1 to 2 hours with all the notes I have made from the online lectures. Okay. Apart from the lecture, how many hours you were studying? Uh, Apart from the lectures, I have did the mock test, which was of 90 Okay. minutes, which are also very beneficial for the revision. ओके। सो वी हैव अ संबित मॉम ऑल्सो। क्या लगता है आपको, कितनी प्रिपरेशन ये कर रहा था, किस लेवल पे स्ट्रैटेजाइज कुछ, इसका रूटीन क्या था? यस उसके लिए बहुत करना पड़ा, प्रेशर एंड एवरीथिंग, पुशिंग एंड एवरीथिंग। बट थैंक्स टू मान्यवर कि उन्होंने मतलब इतना सपोर्ट किया for everything because वेलकम। when Sambit joined the month of November, he was in ready to batch, relay to batch. रिले टू बैच, ओके। To batch. When after that, I request Manavar to I mean share कि उसको और से थोड़ा सा टाइम दे दे, क्योंकि उस टाइम पे नवंबर बैच जब खत्म हो चुका था, तो उस टाइम पे वो लाइव लेक्चर्स उतना ज्वाइन नहीं कर पाया था, क्योंकि ट्वेल्थ के स्टडीज में इतना बिजी थे। तो बाद में जब उन्होंने एक्सेस दिया, फिर पूरा वीडियो देख के अच्छे से सारा मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हुआ, क्योंकि आप लोगों का जो मॉक पेपर था वो सॉल्व किया था। फिर जो जो आपका वीडियो था सारा देख के, मतलब मैं खुद बैठती थी, खुद बैठ के सॉल्व करा के सारा करके, इट्स रियली हेल्पफुल। एंड होप सो आफ्टर 3 years we will be again holding your hand for MBA. अभी से फ्यूचर प्लानिंग है। ओके। सो हाउ डिफिकल्ट फॉर हिम टू मैनेज, मतलब यू वर देयर ऑब्वियसली इन सपोर्ट। सो Yes. 12 बोर्ड भी एक प्रेशर होता था, फिर एंट्रेंस भी प्रिपेयर करना है तो। Yes, because as he was not so good in maths, so हम्म। maths was a little phobia for him.
इट्स अ हम्म वेरी टफ फॉर हिम फॉर मैथ्स। तो हमने इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, जो बाकी और भी थे, जीके एंड एवरीथिंग, करंट अफेयर्स, बिकॉज मान्यवर के एवरीडे करंट अफेयर्स का भी आता था व्हाट्सएप में, तो वो भी देखना, फिर सारा चीज जो भी आता था वो करना। तो हमका मैथ्स में उतना फोकस हम नहीं कर पाए बिकॉज ही इज नॉट एट ऑल गुड इन मैथ्स, मतलब ही इज हैविंग वेरी फोबिया इन मैथ्स कि मुझे नहीं आता। बट It is not with him only, it is with many of the students, maths phobia. he said कि तुम्हें जितना आता है तुम करो, यू Correct. गिव इट 100%, ट्राई करो, नहीं आता नहीं, मतलब रॉन्ग तो रॉन्ग, पर तुम ट्राई करो। वो थोड़ा बहुत मैथ्स उसने किया, बाकी इंग्लिश, बिकॉज ही इज गुड इन इंग्लिश, ही गॉट 94 इन दिस क्लास 12 इन इंग्लिश। सो Mm-hmm. इंग्लिश ज्यादा किया, फिर बाकी लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारा जो जो था वो सब किया, पर मैथ्स में थोड़ा सा वो था। पर फिर Okay. भी आप लोगों का जो वीडियो था मैथ्स का भी, वो भी देख देख के जितना उसको मतलब कर पाए, दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। Mm-hmm. एंड मोर इज योर स्टडी मटेरियल्स, Mm-hmm. because whatever Okay. the books you provide na, the study materials, that also good। इतना synonyms उसमें थे and idioms, सारा तो हमने पूरा शायद हो गया, because Okay. your study materials is very useful, Hmm. but I think it's my personal my view। Hmm. So सारे क्वेश्चन कितने, how many times you, I mean he has practiced 2 3 times, Many times. many times you had practice. Okay, so एग्जाम में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे when you appeared for the exam? Yes, sir. Okay. Exactly नहीं, but just same type. Okay. Okay. Coding and Venn diagram and Okay. Okay. So सबसे ज्यादा टफ सेक्शन मैथ्स ही था या और भी कोई सेक्शन थे? maths and a little bit of data interpretation. Okay. Okay. And when the actual examination, what was your order of attempt? मतलब पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट किया, फिर बाद में, और लास्ट में कौन सा? Series for first English, then logical reasoning, GK, and then computer. ओके. ओके. एंड डू यू थिंक मॉक में मैंने कुछ गलतियां की थी और वो गलती मैंने एक्चुअल एग्जाम में नहीं की, या एक्चुअल एग्जाम में मैंने कुछ गलती की जो मुझे अवॉइड करनी चाहिए, और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये एक काइंड ऑफ अलार्म नोट बोल सकते हो कि हाँ ये गलती हमें नहीं करनी है एग्जाम में, कुछ ऐसी मॉक टेस्ट गलतियां? मॉक टेस्ट में भी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और जीके ओके. भी बहुत बार देखा था। सो आई थिंक एग्जाम में मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन में ज्यादा ध्यान ना देना, इट्स अ काइंड ऑफ मिस्टेक, बट ओके. स्टिल आई मैनेज। ओके. So अभी 4 5 months you have prepared, almost November से you, as you mentioned, 6 5 6 months, yeah. So and you have crack and you have now you are going to this Saint Xavier. तो जब भी प्रिपरेशन चालू किए थे तब ऐसा लगा था कि एक दिन मेरा सिलेक्शन होगा, मैं एक दिन पॉडकास्ट करूंगा? नहीं, वो जेवियर्स तो मुझे बहुत बार बहुत लोगों ने मेंशन किया था, तो मैंने सोचा था काश मेरा एडमिशन हो जाए, एंड हम्म. द ड्रीम कम्स ट्रू। ओके. Not only XCT sir and CET, your this course help, मतलब सारे colleges का, उसने जय हिंद का भी, JCET भी किया था, and CET also XCT and also CVT, he also gave CVT also। ओके. So your course helps not only the for exact one course, so it हाँ. helps overall all the course and all the exam यस. I think he can get। Design in such a way only so that we Your can appear for multiple course is years. designed in so lovely way. So I think any student can give all the exam। Correct. ये भी Correct. नहीं, बाद में भी उनको, बाद में भी ये वाला काम आएगा, नॉट हाँ. ओनली फॉर दिस ओनली कि ये एडमिशन टेस्ट के लिए, बाद में भी ये काम आएगा, बिकॉज योर Okay. स्टडी मटेरियल्स हेल्प आफ्टरवर्ड ऑल्सो। ओके. एंड ही, आई मीन यू वे pretty much clear कि मुंबई में जाना है, आईपीएम वगैरह ट्राई नहीं किया था, एनएमआईएमएस वगैरह, एंड पैट एंड ऑल, सेट जनरल फॉर इनफैक्ट सर एक्चुअली मैथ्स का इशू था। एंड So सेट जनरल फॉर सिम्बासिस? no, actually, some bit don't want to stay in hostel. ओके. So ओके. that's the main reason कि we chose only Mumbai। ओके. ओके. सो संवित, अब आ गया है ज्ञान देने का टाइम, जितने भी स्टूडेंट है जो अपकमिंग ईयर है 26 27 वाले, इनको थोड़ा ज्ञान देना है.
थोड़ा एडवाइस देनी है कि क्या क्या, एनी टिप्स और सजेशन यू वांट टू गिव देम। और हाँ मैम, अगर आप भी कुछ बोलना चाहें बच्चों को। हाँ, मेरी तरफ से तो बस इतना ही है कि ऑनलाइन लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चन रिवाइज करो, मॉक टेस्ट दो। मैंने भी ओके। इतना ही किया है। मैंने कुछ ओके। स्पेशल नहीं किया कुछ। टाइम ओके। बस मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग ना। बस थोड़ा हार्ड वर्क का टाइम दिया जाता है। हाँ करेक्ट। फॉर माई आई थिंक इफ दिस इज आवर मिस्टेक, अगर हम लोग 11 से उसको ट्राई करते, 11 से आपके पास मतलब मैनुअल में हम लोग एडमिशन एनरोल कराते हैं, आई थिंक तो और अच्छे से उसका और परसेंटाइल और अच्छा आता। तो करेक्ट। करेक्ट। बिगनिंग स्टार्टिंग से अगर कोई बच्चा करे फ्रॉम 11, तो करेक्ट। उसके लिए भी इजी होगा, मतलब मोर टू अंडरस्टैंड, मोर टू डाइजेस्ट एंड मोर टू कि हाउ इट इज हैपनिंग। मतलब हम्म। क्या है, इन संबित को थोड़ा सा समझने में टाइम लगा, हम हमको भी समझने में टाइम लगेगा कि कैसे पैटर्न है, व्हाट इज द एग्जैक्ट पैटर्न। सो वो थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। सो आई थिंक 11 से करे तो वो इजी हो जाता है, देन मोर प्रैक्टिस हो जाता है। करेक्ट। करेक्ट। फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड सो वी हैव स्टार्टेड 11 12 प्लस एंट्रेंस। तो अभी बेनूर का बोरीवली सेंटर वसई में तो वी है 11 12 के साथ ही प्रिपरेशन करा रहे हैं। बिकॉज अभी सीईटी भी मैंडेटरी हो गया है फॉर इन महाराष्ट्र फॉर बीबीए बीएमएस प्रोग्राम। यस तो यस और अपार्ट फ्रॉम दैट पीपल टारगेट फॉर आईपी मेट आईएम वाले कॉलेजेस। देन एनएमआईएमएस ने भी आईपीएम प्रोग्राम चालू कर दिया है। सिम्बायोसिस है, क्राइस्ट है, सेंट जेवियर इज यस। देयर। तो मतलब एक बच्चे को एज मिल जाती है कि हाँ थोड़ा पहले से ही प्रिपरेशन चालू हो गई है। पहले तो से प्रिपरेशन करने से और अच्छा मतलब वो हो जाता है। करेक्ट। And करेक्ट। some bit did online course also from here Maneuver. So करेक्ट। offline मुझे लगता है कि offline होता तो थोड़ा सा और बच्चों का मतलब वो होता, concentration and all, because हाँ थोड़ा सा वो nowadays एक इकोसिस्टम बन जाता है, क्लास में आ रहे हैं लोग दिख रहे हैं। हाँ, but then करेक्ट। also online helps की वीडियो था, बाद में कर सकते हैं, because ये सब किया, that is also helpful किया अच्छा। हम्म। हम्म। बट वो दोनों क्या है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड। एकेडमिक बच्चों को वो ऑफलाइन पढ़ने की ज्यादा आदत होती है कि क्लासरूम में आके बैठ के पढ़ो। बिकॉज एज वी स्टे फार फ्रॉम स्टेशन ना, तो हाँ। ट्रैवलिंग एक इशू था हम लोगों के लिए, क्योंकि क्लैश कर रहा था अदर कोर्स के साथ, ओके। ओके। एकेडमिक टाइमिंग नहीं मैच हो रहा था, सो वी चूज ऑनलाइन। करेक्ट। करेक्ट। All right, guys. So I hope you have enjoyed this podcast. Tell me in the comment section what you have learned from this podcast. And if your parents are supporting you, like ma'am, like Sambit को his mom help a lot. तो आप भी mom dad की help ले करके prepare करो and crack your exam, build your career. Any kind of assistant guidance require, we are always there for you people to help you. And वीडियो को शेयर करो, मैक्सिमम लोगों तक हेल्प करो। एंड एनी एंड टेल मी व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस पॉडकास्ट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट। या या थैंक यू थैंक यू सो सो मच, मच सर। योर थैंक यू, वेलकम, योर थैंक यू फॉर वेलकम। एवरीथिंग। मेरा योर जेन वेलकम। में एडमिशन का रूट कॉज यही से शुरू हुआ। अच्छा